हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतीक्षा फ्रॉम कैड सेंटर। तो आज फिर से मैं आई हूँ जॉब वैकेंसी लेके, जो है सिविल स्टूडेंट्स के लिए, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आप अब तक की वीडियो आप सब ने देखे होंगे, तो उसके हिसाब से आपको पता चला होगा कि मार्केट में कौन से सॉफ्टवेयर की नीड है, कैसी वैकेंसीज आती है सिविल इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स के लिए या फिर इंटीरियर स्टूडेंट्स के लिए कैसी वैकेंसीज आती है। ठीक है, तो आपने अब तक की वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि स्टूडेंट मार्केट की नीड क्या है, तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज फिर से मैं और एक वीडियो लेके आई हूँ जो है जॉब रिगार्डिंग, जिसमें आप मार्केट स्टडी कर सकते हो। ठीक है, हमारे वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रोडक्ट आर्किटेक्ट मतलब हमारे कौस्तुभ सर क्या कह रहे हैं वो पहले हम सुनते हैं। Hello friends, welcome to the section of job study. This is Kaustubh Panse, product architect, design your own university. Let's first understand what is this section all about. Guys, when we conducted the survey for student, about 500 people have filled the survey. The major pain area of student that in which we need to support them according to the survey is interview preparation. So for that reason, to prepare you for the interview, we have created this section. Yeah, so let me allow me to explain it one by one. Now, why you have to see this video? Why you have to do take notes on this? See, the first reason is why you have to do it is you have to study the job market, because in a market, in a job kind of market, there are a lot of companies. So we want you to make very rational choices. So first study job market. Then once you understand market, then set your goal that I want to work in this profile. I want to set vision. I want to become like this person. I want to achieve this much salary. And then once you have set a goal, then you go for interview preparation. Begin your interview preparation. Right now, what is the whole agenda? See, my entire team is working with you. We are conducting interviews, and we have found out that students are not even aware of the name of the company. So imagine you want to work in a multinational company, but you don't know their names. So forget about their job profile, their clients, projects, everything. So here in every video, we will improve your knowledge just by 1%. We will improve your information by just 1%. Now you do it for 6 months. So from this knowledge, you will have the entire market study done. So you can make very good choices. Second reason is how do you prepare yourself for an interview? Because most of you are fearful about the interviews for a simple reason, you don't know what would be asked in that interview. So my recommendation is, whenever you are seeing this video, come with a diary, prepare notes. Yeah, you make a special job study diary. And finally, you explore the employer's website. That is very, very important. Because I have to prepare this video in a short while, I cannot explore it on my own. So you take your own time and explore it. The third point is what you have to do when you do this. This is a very simple process. First thing is you analyze your skills. I will be telling you what kind of skill requirement is there in the market. There are 3 kinds of skill requirement for any job profile. One is software skills, other is design skills, and third is soft skills. Yeah. So every company, depending upon, will have variable requirement in the 3 areas. So all these 3 areas, now analyze your skills. Yeah, how much designing skills you have, what kind of software skills you have, and what kind of soft skills you have. Yeah, and once you do this, just become aware of 2 things. What are these 2 things? These 2 things are, whenever you were seeing that video, were you having a sense of self-belief? Were you feeling confident in that area? Just be aware of that and note down those points. Now, you also see, fear is a very good indicator. Fear only means that you are not prepared in that area. So if they are asking, let's say for example this video, if this is asking you to have excellent spoken English skills and you feel fearful, अगर आपको डर लगा है तो इसका मतलब आप वहाँ पे prepared नहीं हो. तो ये जो fear है उसके भी point आप नोट डाउन करो. यहाँ पे टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ये इसको मेंशन करो. अभी क्या करना है कि जिस पॉइंट पे आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है उसको वैसे ही मत छोड़ो, वेरीफाई करो. देखो उस पर कोई असाइनमेंट सॉल्व करके, कैड सेंटर के ट्रेनर से जाके मिलो, पूछो कि सर ये मेरे स्किल्स बराबर है क्या. अपने लाइफ के ये पॉइंट देखो, है ना. अभी जहाँ पे आपको फियर महसूस हो रहा है, सिंपली आपको जाना है यूनिवर्सिटी में लॉगिन कीजिए. मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हैं, उस सेक्शन में जाइए और खुद उसका प्रिपेयर कीजिए. Yeah, so that is how you have to go about the business here. Okay, अब आपने सुना होगा कि कौस्तुभ सर ने क्या बताया, ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, इस वीडियो से आपको क्या मिलेगा, ये सब तो आपको पता चला होगा.
ये सब आप कौन से सॉफ्टवेयर की नीड है ये तो अब आपको पता चलेगा ये वीडियो देख के, तो ये वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं जॉब स्टडी को, ठीक है। तो आज की कंपनी क्या है, कौन सी ओपनिंग है आज कंपनी से, तो ओपनिंग है सिविल इंजीनियर की, मतलब सिविल इंजीनियर का ही जॉब है अगर आपको इंडस्ट्री में। तो सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं, क्या उनका डेली वर्क क्या रहता है, वो थोड़ा पता करते हैं। अब सिविल इंजीनियर का जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दिया है, तो हम पता करते हैं कि सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं। तो सिविल इंजीनियर्स का जॉब क्या रहता है कि प्लानिंग ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राइंग्स ऑन मंथली एंड क्वार्टरली बेसिस, देन प्लानिंग ऑफ वर्क मटेरियल्स एंड लेबर्स ऑन डेली, वीकली, मंथली एंड क्वार्टरली बेसिस, then analysis and study of drawings, ensure execution of plan work as per approved drawings, then check and ensure quality of work done at site as per construction checklist, calculating estimated cost for project and create MIS for costing and monitoring of existing actual cost, then coordination with engineer for material। अब ये सब क्या है, मतलब coordination with engineer for material क्या है कि आपका जो इंजीनियर होगा वहाँ पे, आपका जो सीनियर होगा वहाँ पे, उसके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना होगा मटेरियल की रिक्वायरमेंट लेके। देन कैलकुलेटिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर प्रोजेक्ट एंड क्रिएट MIS फॉर कॉस्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एक्चुअल कॉस्ट। मतलब इसमें क्या है कि आपको एस्टिमेटिंग करना है, तो एस्टिमेटिंग के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर रहता है, तो एस्टिमेटिंग का सॉफ्टवेयर कौन सा है वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एस्टिमेशन का सॉफ्टवेयर नहीं आता तो आप ओरली तो नहीं कर सकते ये। तो एस्टिमेशन के सॉफ्टवेयर कौन से है, जैसे कि BOQ है, मतलब बिल्डिंग ऑफ क्वांटिटी है, या फिर नेविस वर्क्स है, ये सब सॉफ्टवेयर की नीड आपको होनी चाहिए, ये सब सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये था जॉब डिस्क्रिप्शन एज ए सिविल इंजीनियर के लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि कौन सी कंपनी की तरफ से ये वैकेंसी आई है, तो वैकेंसी है मेगा TC करके, मतलब मेगा इंजीनियरिंग की तरफ से ये वैकेंसी आई है। इनकी वेबसाइट भी मैंने यहाँ पे डाली हुई है, या आप इस वेबसाइट पे जाके आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो मैं बता देती हूँ कि मेगा इंजीनियरिंग कंपनी है क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा कि मेगा इंजीनियरिंग कंपनी के प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, वो कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनका लोकेशन कहाँ पे है। तो मेगा इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ पे है कि वो क्या ऑफर करते हैं, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कमीशनिंग सर्विसेज फॉर केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री, मतलब केमिकल इंडस्ट्री के जो भी प्रोजेक्ट रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप अगर ये फोटोज़ देखते हो तो केमिकल प्लांट्स है, तो इनका प्रोजेक्ट जो है वो मेगा इंजीनियर्स कंपनी लेती है। तो ये जो प्लांट्स है, ये सब स्ट्रक्चर्स है, ये प्लांट्स आप सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, ठीक है। तो लोकेशन कहाँ पे है, बालेवाड़ी में पुणे में लोकेशन है। जो स्टूडेंट्स पुणे से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनको बालेवाड़ी में जो प्राइम एरिया है बालेवाड़ी पुणे का, वहाँ पे आपको जॉब करने का मौका मिल रहा है, वहाँ पे आपको मेगा इंजीनियर्स में जॉब करने का मौका मिल रहा है। तो इनके सॉफ्टवेयर्स की नीड क्या है या फिर इनके और प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो अब तो मैंने बता दिया, ये थोड़ा सा डिटेल में नहीं बताया मैंने। अगर आपको डिटेल में जानना होगा, अगर आपको डिटेल में मेगा इंजीनियर्स के बारे में स्टडी करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक प्रोवाइड की हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो इस स्लाइड में क्या है कि मेल और स्क्रीनशॉट, मतलब मैंने उनका मेल आया तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हो कि उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और उनको कौन से सॉफ्टवेयर की नीड है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप चेक कर सकते हो। अब एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि उनके एक्सपेक्टेशंस, उनको सॉफ्टवेयर्स की नीड कौन सी है, तो पहले हम देखते हैं कि उनके सॉफ्टवेयर्स की नीड क्या है। तो पहले तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिविल ड्राइंग्स, प्रिपेयर एस्टिमेट्स एंड क्वांटिटीज। तो क्या है कि आपको सिविल ड्राइंग्स पढ़ना आना चाहिए, प्लस आपको एस्टिमेशन करना आना चाहिए और क्वांटिटी भी निकालनी आनी चाहिए, एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी निकालनी आनी चाहिए। तो सिविल ड्राइंग्स पढ़ना ये तो आप सीख जाओगे, अगर आपके पास ड्राइंग आएगी तो आप सीख जाओगे ड्राइंग पढ़ना। अब एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी वो कैसे करोगे आप, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर्स की नीड है। तो सॉफ्टवेयर कौन से चाहिए, BOQ एंड ऑटोकैड। अब ऑटोकैड सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए, तो ऑटोकैड आपको सिविल ड्राइंग्स पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, जिसमें आप प्लानिंग डिटेलिंग में दिखा सकते हो ऑटोकैड में। और BOQ सॉफ्टवेयर क्या है, BOQ सॉफ्टवेयर जो है वो एस्टिमेशन का सॉफ्टवेयर है। BOQ मतलब बिल्डिंग ऑफ क्वांटिटी, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो एस्टिमेशन का सॉफ्टवेयर है। तो थोड़ा सा पता करते हैं कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है क्या, तो चलिए देखते हैं ऑटोकैड का वीडियो। So I provide drafting services for interior designers. I find AutoCAD to be one of the most favorite tasks that I do. AutoCAD is one of the most versatile tools. I find it very intuitive and very helpful and very easy to get the job done.
AutoCAD is the most important program. It's like a common language. बीओक्यू ऑटोकैड का वीडियो तो आपने देख लिया। अब बीओक्यू सॉफ्टवेयर है क्या? बीओक्यू का फुल फॉर्म है बिल्डिंग ऑफ क्वांटिटी। अब बिल्डिंग ऑफ क्वांटिटी में क्या करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन में या फिर उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में देखा होगा कि उन्हें एस्टिमेशन या क्वांटिटी निकालने की ज़रूरत है, एस्टिमेशन क्वांटिटी करने की ज़रूरत है। तो बिल्डिंग ऑफ क्वांटिटी में सेम होता है, आप एस्टिमेशन कर सकते हो, क्वांटिटी निकाल सकते हो मटेरियल्स की, और एस्टिमेशन भी कर सकते हो मटेरियल्स का। ये सब डिटेल में आप बीओक्यू में कर सकते हो। उसके लिए आपको पूरा ड्राइंग होना, आपके पास पूरी ड्राइंग होनी चाहिए, आपके पास ऑटोकैड का प्लान होना चाहिए। तो बीओक्यू आने के लिए पहले आपके पास ऑटोकैड का प्लान पूरा होना चाहिए, उसके ऊपर आप फिर एस्टिमेशन और क्वांटिटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये दो सॉफ्टवेयर्स की नीड है उन्हें। अगर आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर आते हैं तो आप इजीली इस कंपनी में प्लेस हो सकते हो। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर नहीं आते तो आपको ये सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए। ठीक है, ऑटोकैड तो बेसिक सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपको बीओक्यू सॉफ्टवेयर भी आना चाहिए। अब जॉब प्रिपरेशन, अब कंपनी क्या चाहती है? ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहती है प्लस बीओक्यू सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहती है। हमारे डिज़ाइन योर ओन यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल है, उसमें अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हो तो आपको ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो आप सीख सकते हो, वो वहाँ से आप सीख सकते हो। तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है वो यूनिवर्सिटी में कहाँ पे है? अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो वहाँ पे स्पेस डिज़ाइन का एक सेक्शन होगा, उसमें मॉडलिंग फंडामेंटल्स का एक सेक्शन होगा, फिर उसमें ऑटोकैड का एक सेक्शन होगा। तो वहाँ पे जाके आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर बेसिक में डिटेल से सीख सकते हो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब बीओक्यू सॉफ्टवेयर भी है, बीओक्यू सॉफ्टवेयर भी सीखना है तो आप उसके लिए भी आप कैड सेंटर में आके इंक्वायरी करो और एडमिशन लो, तो फिर आप बीओक्यू सॉफ्टवेयर जल्दी से जल्दी सीख सकते हो और जल्दी से जल्दी किसी कंपनी में प्लेस हो सकते हो। अगर आपको इंटरेस्टेड है एस्टिमेशन में, क्वांटिटीज़ में, तो आप बीओक्यू सॉफ्टवेयर सीखो जल्दी। ठीक है, तो फिर ये तो कंपनी की तरफ से था कि उन्हें ऑटोकैड और बीओक्यू सॉफ्टवेयर की नीड है, वही कैंडिडेट वो उठाने वाले। अब मैं क्या बता रही हूँ आपको, ऑटोकैड, बीओक्यू सॉफ्टवेयर, रेविट, एमएसपी वगैरह ये सब सॉफ्टवेयर तो ये तो कंपनी की नीड होती है, लेकिन कंपनी जो नहीं बताती, जो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि कंपनी नहीं बताती कि आप आते समय आपका कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, या फिर कंपनी ये नहीं बताती कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर करके आओ। तो ये सब जो है आपको इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। जाके आपको अगर टेक्निकल स्किल्स आती भी है, आपको सॉफ्टवेयर आता भी है, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके घबरा जाते हो बोलने के लिए, आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हो, कैसे बिल्डअप कर सकते हो वो कॉन्फिडेंस? उसके लिए भी हमारे यूनिवर्सिटी में एक स्किल अप सेक्शन का एक सेक्शन है, उसमें इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स का एक सेक्शन है, तो उसमें जाके आप सीख सकते हो हाउ टू इम्प्रूव योर इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स। प्लस मोटिवेशन स्किल्स भी है, मतलब आपके पास आप सेल्फ मोटिवेट होने चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी जाके आप इंटरव्यू में कुछ अच्छा बोल सकते हो। तो सेल्फ मोटिवेशन क्या है, उसके लिए भी हमारे पास यूनिवर्सिटी में स्किल अप सेक्शन में सेल्फ मोटिवेशन का छोटा सा वीडियो है, वो भी आप देख लो, फिर आप मोटिवेट होकर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हो। तो इस सब में आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से जल्दी हमारे यूनिवर्सिटी पोर्टल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी का मैंने एक वीडियो यूजर इंटरफेस का स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, तो हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी दिखती है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको और पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी है क्या, यूनिवर्सिटी पोर्टल है क्या। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो यूनिवर्सिटी पोर्टल को। और डिटेल्स चाहिए आपको, बीओक्यू ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीखना है और ज़्यादा सॉफ्टवेयर सीखने हैं, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट आर्किटेक्चर और भी सॉफ्टवेयर अगर आपको सीखने हैं तो इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो, इस दिए गए नंबर पे कॉल करो, और अगर आप मेल करना चाहते हो तो इस दिए गए नंबर पे मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप ये सॉफ्टवेयर सीख लो, यूनिवर्सिटी का सब्सक्राइब करो और आपकी मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है वो जल्दी से जल्दी ग्रैब करो। ठीक है, सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।